what are the means course objective means these are the objective that I will or we will try to achieve by going through the syllabus from first unit to fifth unit. Our target to achieve these three things. These are the important points that are highlighted. A student should be able to learn how to sketch and take the field dimensions and how to take data and transfer it into the graphic drawings. जैसे किसी भी एरिया का सर्वे होता है तो उसके डायमेंशंस होते हैं, ओके, तो उस डायमेंशन को हम ड्राइंग पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो। एंड फाइनली बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट्स, जो ड्राइंग फॉर्मेट्स होते हैं, जो शीट्स होती हैं ड्राइंग शीट्स, उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, कहाँ पर वो हमारा कंटेंट होगा, कहाँ पर फिगर बनेगा, कितना मार्जिन हमें छोड़ना है, दीज आर द थिंग। So first of all, it is the general introduction about the drawing. It is the way of conveying the ideas through systematic lines on the paper. पेपर पर अपने आइडियाज को, जो भी इमेज हमारे माइंड में जनरेट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर कि इस तरह का वो दिखना चाहिए, अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इसको लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है पेपर में। दिस इज द ड्राइंग। ये इसके दो मेनली क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज आर्टिस्टिक ड्राइंग and second one is engineering drawing. So we will only mainly focus on the engineering drawing. Artistic drawing is meant for another other purpose, like for architects. Architects जो होते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट वाले जो होते हैं लोग, उनके लिए आर्टिस्टिक ड्राइंग this is not relevant for us. Just for the knowledge purpose, two types of drawing are there, so it has been discussed here. Like in example, it is written पेंटिंग, सिनेमा पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स। लाइक जो भी हम एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स देखते हैं या जो भी पोस्टर्स देखते हैं अपने अराउंड, किसी का एड है, वो सारे आर्टिस्टिक ड्राइंग्स में आ गए। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जनरली हमें हर जगह नहीं दिखते, दैट आर अवेलेबल विद दोज ड्राइंग्स आर ओनली विद द इंजीनियर्स। It provides necessary information about shape, size, surface quality, material, manufacturing processes, etc. of the object. It is a graphical language from which a trained person can visualize objects. अब जैसे आई डोंट नो कि अब जैसे होता क्या है इंडस्ट्री में या फिर कह सकते हैं कि ऐसे लोकेशन पे ऑर्गेनाइजेशंस में कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ ड्राइंग्स किसी को भेजा, तो अगले को ड्राइंग देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज कैसे बनेगी। ओके, तो ये है रिप्रेजेंटेशन, हाउ आई कैन represent my imagination through sheets so that another person can understand sitting at any place in the world. ये है मेन पर्पस, ग्राफिकल ये लैंग्वेज है एक तरह से। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग. Number one is geometrical drawing. In this we have subtypes like plane geometrical drawing, solid geometrical drawing. Geometrical drawings like different types of shapes, as it is written here in the form of example: rectangle, square, cube, cone, cylinder. These are the different shapes in 2D and 3D. Plane geometrical drawings जो होते हैं वो 2 dimensional होंगे, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, rhombus. These are the plane which have only length and width. ओके, सॉलिड में 3D आ गए। 3D जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे, सपोज ग्लास, बिल्डिंग, चिमनी एंड अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये सब जो 3D ऑब्जेक्ट्स, उसका छोटा छोटा कंपोनेंट हमें ये करना है, ड्रॉ करना है। जैसे एक छोटे छोटे क्यूब्स को या क्यूबॉइड को मिलाकर एक बिल्डिंग बनती है, तो हमें उस छोटे क्यूबॉइड का वो इसको ये करना है कि किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम एट द बिगनिंग. Then later on at the when we will start 5th unit, we will discuss entire project cycle. किसी भी प्रोजेक्ट में ये सारे का किस तरह इन्वॉल्वमेंट है. We will have class test after the completion of each unit. That will be there, and and there will be some class tutorials. Like it is also written in syllabus also. There will be one tutorial class for this lab.
So in tutorial class, we will have question answer. I will give you some questions or some assignments, and you have to solve those questions at the instant or by submitting after some time. Next, we have solid mechanical engineering or machine drawing. These types of drawings are relevant for mechanical engineers, like drawing of a factory, drawing of a machine. तो ये जो है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होते हैं सिविल इंजीनियर्स के रिलेटेड उसमें ड्राइंग्स होती हैं, जो जैसे एग्जांपल में गिवन है ब्रिज, बिल्डिंग्स, डैम्स, हाईवे, एयरपोर्ट, मॉल्स, मेट्रो, ये सारी की जो ड्राइंग्स होती हैं दैट आर रिलेवेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स. Then we have electrical and electronics engineering drawing. So in this, the drawings are for like drawing of a circuit or anything that are written with power, electricity. उस तरह के ड्राइंग्स होते हैं और उसमें जो सर्किट देखा होगा इलेक्ट्रिकल का जो होता है वो सारे, तो उसकी भी ड्राइंग्स होती हैं. किसी भी प्रोजेक्ट में इन सारे का कॉम्बिनेशन होता है. सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस क्या है, वर्क को इजी करता है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी मैकेनिकल के कंपोनेंट है लाइक फायर फाइटिंग एंड मशीन लिफ्ट, ये सारी चीजें यूज होती हैं डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग. रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सिंपल सिंपल चीजें होंगी, लिफ्ट होगा, जनरेटर होगा, इलेक्ट्रिक पैनल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट होगा पूरा, तो वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगी उसकी. सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो जो भी बाकी कंपोनेंट है, वो फ्लोर है, वो पिलर है, बाकी जो चीजें फाउंडेशन है, उसकी ड्राइंग्स होंगी. So in any project, there is a combination of all those types of drawing, and with the help of software, these things are made very easy or in a less time. Next, we have types of drawing instruments that are used in a drawing or drawing materials. तो ये एक ब्रीफ में एक दिया गया है कि इतने टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. इससे ज्यादा भी होते हैं, इससे कम भी होते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल. अगर कहीं पर हमें जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उन सारे का यूज करके हम ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं. जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का ही यूज करके हम कर सकते हैं ड्राइंग. तो अ गुड इंजीनियर इज दैट हु कैन वर्क विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. ये नहीं है कि हम डिमांड कर रहे हैं हमें इतना सामान मिलेगा तो ही हम ये काम करेंगे. दैट इज नॉट द गुड थिंग. ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो. कहीं लिमिटेड हो सकते हैं, कहीं वास्ट हो सकते हैं. तो दिस आर द थिंग. तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि ये चीजें होती है किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए. ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, शीट होल्डर. शीट होल्डर नहीं है तो हम अदर मैकेनिज्म से काम से कर सकते हैं. सेट स्क्वायर्स ऑफ 3 टाइप्स, 25 degree and 30 degree and 30 to 60 degree. These are the set squares जो अवेलेबल होते हैं. प्रोटेक्टर, ड्राइंग पेंसिल, पेंस, हाँ एक चीज और, ये सारी चीजें तो पता है सबको. क्लिप, सेलो टेप, डस्टर, हैंडकरचीफ, मिनी ड्राफ्टर, शार्पनर, शीट फोल्डर. इसमें जो इम्पोर्टेंट है शीट, ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल, इरेजर, ड्राफ्टर और शार्पनर. ऑब्वियस है, पेंसिल होगी तो शार्पनर होगा. और बाकी चीजें ना भी हो तो काम हो सकता है. सेट स्क्वायर इज रिक्वायर्ड बट नॉट नेसेसरी. प्रोटेक्टर यू कैन यूज. शीट फोल्डर तो वो होता है सारी शीट्स को किसी एक फोल्डर में होल्ड करने के लिए. यू माइट हैव सीन, अभी तो फिजिकल क्लास स्टार्ट नहीं हुई है वरना ये सारी चीजों की जरूरत होती. Later on, in case the classes start with the physical medium, you will have to use these resources. इतनी तो मस्ट है जो मैंने अभी टिक किया है. शार्पनर तो ऑब्वियस से होगा, तो काउंट क्या करना है. हाँ, इसमें शीट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और पेंसिल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. टाइप्स मीन्स शीट्स के साइज अलग अलग होंगे. जैसे A4, A3, A2, A1, A0, ये 5 टाइप की शीट होती हैं. दीज शीट्स आर डिवाइडेड, ये लेंथ और विड्थ सबके अलग अलग होते हैं. सिमिलरली पेंसिल में क्या है, कोई पॉइंटेड, किसी से लाइट ड्रॉ होता है, किसी से डार्क ड्रॉ होता है.
इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल होती है। नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग बोर्ड। अब जो भी इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, इनको ब्रीफ में मैं यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ड्राइंग बोर्ड क्या है और किस किस मटेरियल का बना होता है और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो ये है, दिस इज मेड ऑफ सीजन वुड ऑफ 25 mm थिकनेस एंड ऑफ टी स्क्वायर, जैसे ये फिगर में गिवन है। ये ड्राइंग बोर्ड है एज रिटन शोन विद द एरो। ओके, ये जो बाहर का रेक्टेंगल है, जो बाहर वाला रेक्टेंगल विजिबल है, ये बोर्ड के एजेस हैं। दीज आर द एजेस ऑफ अ बोर्ड। जो इनर रेक्टेंगल है वो शीट को शो किया गया है। आई विल शो सम रियल इमेजेस इन नेक्स्ट लैब। रियल इमेज कैसे होती है, मे बी इट इज अवेलेबल। तो अंदर वाली जो रेड लाइन है वो शीट है, बाहर वाली जो रेड लाइन है वो बोर्ड का एज है। ओके, इसकी थिकनेस जो होती है, अगर इसकी थिकनेस देखें तो ये 25 mm जनरली होती है और ये वुड का बना होता है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसमें मिनी ड्राफ्टर, ये वाला जो पार्ट है, ये इंटायर पार्ट, दिस इंटायर पार्ट इज ड्राफ्टर। ये जो ग्रीन वाला मैंने टिक किया है, ये एक पूरा का पूरा ड्राफ्टर कहलाता है। इसमें मिनी ड्राफ्टर इसलिए कहा गया, ये छोटा वाला होता है, इससे बड़ा भी एक ड्राफ्टर आता है, दैट इज यूज फॉर लार्जर शीट। ओके, जो हम जनरली वर्क करेंगे, जो मतलब फिजिकल क्लास में यूज करते हैं, वो होती है हमारी A1 शीट। A0 यूज नहीं करते, A2 छोटी शीट हो जाती है, A3, A4 काफी छोटी। A4 तो सबने देखा होगा A4 शीट कितनी बड़ी होती है। दैट आर नॉट यूज इन लैब, but for your online mode it is recommended that all of you keep A4 sheets. So this is the discussion about drawing board, and next we have mini drafter. This is written here, you can go through the definition. Actually these are not required for exam purpose, just you should all aware what is the mini drafter, how it looks, and what is the function of that. ये जो इमेज है, ये मिनी ड्राफ्टर की इमेज है जो मैंने टिक किया था अभी ग्रीन से। ये स्केल इसमें फिक्स होते हैं और ये रोटेट होता है यहाँ से। ओके, यहाँ पर रोटेट होता है और ये रोटेट होता है। एक जगह यहाँ पर ये फिक्स होता है बोर्ड में। एट दिस लोकेशन ड्राफ्टर इज मेड टू फिक्स। नेक्स्ट वी हैव पेंसिल्स। पेंसिल्स के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पेंसिल्स क्या होते हैं और किस टाइप की पेंसिल का क्या फंक्शन है, और सिंबल्स जो पेंसिल्स के होते हैं उसका क्या मतलब है। Leads of different degrees of hardness or grades are available. Hardness or softness of lead is indicated by 3H, 2H, H, then HB, B, 2B, 3B, etc. अब यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी बताई गई है। HB डिनोट्स मीडियम हार्डनेस ऑफ लेड। लेड मीन्स जो ग्रेनाइट पार्ट होता है, सॉरी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पार्ट जो होता है ब्लैक वाला पेंसिल का, उसको कहा जा रहा है। यूज फॉर जनरल पर्पस। HB hardness increases as the value of numeral before letter H increases. Means H से पहले जितना ज्यादा वैल्यू होगी, 1 2 3, 3H मीन्स वो ज्यादा हार्ड होगा। हार्ड कहने का मतलब है वो जो उससे हम ड्रॉ करेंगे तो ये डार्क लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट, lead becomes softer as the value of numeral before B increases. अब B से पहले जो न्यूमरल वैल्यू है जितना ज्यादा होगा उतना ही वो सॉफ्ट होगा वो पेंसिल। ओके, you should know this, the symbol, what is every symbol of pencil use is about. 3H का क्या मतलब है, इसमें H क्या है, 3 क्या है, नंबर का क्या मतलब है, और अल्फाबेट का क्या मतलब है। सिमिलरली B में नंबर का क्या मतलब है और अल्फाबेट का क्या मतलब है। H stands for hardness simply, and
नेक्स्ट HB सॉफ्ट ग्रेड फॉर बॉर्डर लाइंस, लेटरिंग एंड फ्री स्केचिंग। HB पेंसिल जो यूज करते हैं हम, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने लाइफ में, टिल जो स्कूल लेवल जो भी पेंसिल यूज कर रहे थे वो HB पेंसिल होती है। वो सॉफ्ट होती है ना हार्ड होती है, वो मीडियम होती है। ओके ये हम नॉर्मल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। H मीडियम ग्रेड फॉर विजिबल आउटलाइन। मैंने कहा कि हार्ड लाइन या जो डार्क लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल की, कहीं पर अगर ऐसा हमें ड्राइंग में है कि उस लाइन को डार्क शो करना है तो H वाली पेंसिल यूज करेंगे, जिससे आउटलाइंस, एजेस या बाउंड्री लाइंस जो होती हैं वो विजिबल हो। 2H हार्ड ग्रेड फॉर कंस्ट्रक्शन लाइंस, डायमेंशन लाइंस, लेडर लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस, सेंटर लाइंस, हैचिंग लाइंस एंड हिडन लाइंस। ये डिफरेंट टाइप्स की लाइंस हैं दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। तो ये सारे लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम 2H पेंसिल का यूज करते हैं। तो in lab these types of pencils are required, at least 3 types, HB, H2H। ये जो 3 टाइप्स यहाँ पर बुलेट्स में शोन है, ये 3 पेंसिल तो चाहिए ही चाहिए। अदर पेंसिल्स रख सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, बट दीज 3 आर मस्ट।